Hello friends, this is Alsaba Nadaf from Dr. Sadullah Khan Junior College Solapur. In today's video of solid state, we are going to learn few more concepts. If you have not watched previous videos, so links are given in the description. So let's get started. Friends, in today's video, we are going to learn what is the packing of particles in crystal lattice. First of all, we will see what is coordination number. The number of neighboring spheres that touch any given sphere is its coordination number. Means अगर कोई भी एक स्फीयर है, मीन्स कोई एक एटम है, उसको नेबरिंग एटम्स कितने एटम्स या कितने स्फीयर्स टच कर रहे हैं वो उस एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा. We will see in detail. Then coordination number is directly proportional to compactness of sphere. Means the larger is the coordination number, the closer the spheres to each other. Means अगर coordination number ज़्यादा है, इसका मतलब spheres उतने ही compactly arrange है. Okay. Then next, close packed structure. The three-dimensional close packed structure can be understood by looking at the close packing in one-dimensional, two-dimensional, then three-dimensional. So these are the steps. The first step is close packing in one dimension. One dimension means only in one dimension. By arranging the sphere touch each other in a row. Means कोई भी dimension में एक row. It may be vertical, it may be horizontal, like this. The spheres are arranged in a row, in a horizontal manner or in a vertical manner. This is nothing but the close packing in one dimension. Consider these are the axis, x axis, y axis and z axis. ये कोई भी एक एक्सिस को हम पकड़ के अगर हम एटम्स को अरेंज करते जाएंगे तो वो हो गया उसका वन डायमेंशन. अगर समझो हमने एक्स एक्सिस को कंसिडर करके वहां पर उसको एटम्स को अरेंज करने गया, एक रो बनाया है, दैट इज द क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन. ओके, इसी तरह से हम वाई एक्सिस को कर सकते हैं और जेड एक्सिस को भी एटम्स को अरेंज कर सकते हैं. सो व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर. कंसिडर ये वाला जो सेंटर का रेड वाला एटम है, मैंने इसको हाईलाइट किया है रेड कलर से. कंसिडर दिस एटम इज अटैच डायरेक्टली अटैच टू टू एटम्स. हेंस द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दिस एटम इज 2. सो इन क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशनल the coordination number of each sphere or atom is 2. Okay, then next step is close packing in two dimension. Every one dimensional layer is stacked above other. Okay, so इसमें दो टाइप है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इसमें से फर्स्ट टाइप देखेंगे. मीन्स यहाँ पर जो भी अभी हमने जो फर्स्ट वन डायमेंशन में जो रोज बनाए हैं उसको हमको क्या करना है, एक के ऊपर एक प्लेस करना है. इसके दो टाइप्स है. तो सबसे पहला टाइप है कि आप ये जो रोज को है एग्जैक्टली एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, एग्जैक्टली आप इसको अगर हम इसको अरेंज करेंगे, इफ यू अरेंज लाइक दिस मीन्स spheres of different rods are aligned vertically and horizontally. Means every sphere should align vertically and horizontally. Then next हम यहाँ पर इसको हम एक्सिस डालेंगे तो आपको इजीली समझ जाएगा कि जो भी रोज है वो एक ही डायरेक्शन में और spheres of rows are aligned vertically and horizontally. देन नेक्स्ट इसका हम कोऑर्डिनेशन नंबर देखेंगे. हम इसको हाईलाइट किया रेड पार्ट से. कोई भी एक एटम को देखो तो उसको डायरेक्टली अटैच कितने एटम्स है, 4 स्फीयर्स. सो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है 4. अब हम जैसे कंसिडर करेंगे कि फर्स्ट लेयर को हम
ए दिए नेम, सेकेंड लेयर को हमने डिनोट किया बी ए लेयर से, थर्ड फोर्थ, क्योंकि सब क्या है सिमिलर रोज है और उनको सबको हमने अरेंज किस तरह से किया है, सिमिलर मैनर से, एक टिपिकल पैटर्न से हमने उसको अरेंज किया है. So this arrangement is called as AAA arrangement. Okay. अब हम क्या करेंगे, by joining the centers of these four atoms, any four atoms, we can find out the square is obtained. Then therefore this type of close packing two-dimensional is called as square close packing in 2 dimension. Okay. Then next यहाँ पर जो उसकी फ्री स्पेस, इसको हम voids कहते हैं, इसको हमने लास्ट वीडियो में भी देखा है. इट इज स्क्वायर शेप, तो आप इसको क्लियरली अगर देखोगे तो इट इज अ स्क्वायर शेप. सो दिस इज द टाइप 1, दैट इज स्क्वायर क्लोज पैकिंग. देन नाउ वी आर गोइंग टू सी द टाइप 2. इसके पहले हम देखेंगे ये जो हमारी रो है, हमने जो 1 डायमेंशनल में जो अरेंजमेंट किया है इस तरह की रो, तो इसको हम देखेंगे कि एक वेव की तरह मिलता है हमको स्ट्रक्चर. तो वो जो अपर पार्ट है उसको हम क्रस्ट बोलते हैं और जो डिप्रेशन बिटवीन द स्फीयर्स है उसको हम ट्रफ बोलते हैं. ये क्यों इम्पोर्टेंट है, तो अभी हम इसको ही देख के हम नेक्स्ट वाला जो टाइप है वो वाला अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे. ओके. टाइप 2, द क्रेस्ट ऑफ वन रो इज इन कॉन्टैक्ट विद द डिप्रेशन ऑफ अनदर रो. किस तरह से, ये वाली एक फर्स्ट रो है, इसका जो क्रस्ट है, द क्रस्ट ऑफ वन रो इज इन कॉन्टैक्ट विद डिप्रेशन. तो आप देख सकते हो यहाँ पर इस तरह से अरेंजमेंट होता है इनका. देन नेक्स्ट ओके. जो क्रस्ट है फर्स्ट रो का वो डिप्रेशन में होगा, वो किसको अटैच होगा, डिप्रेशन ऑफ सेकेंड रो, और सेकेंड रो और दूसरा उसके बाद देखोगे तो आप डिप्रेशन को क्रस्ट अटैच है, क्रस्ट को डिप्रेशन, इस तरह से वाइस वर्सा इसका अरेंजमेंट होता है. देन नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर आपको मिलेगा इसका 6, क्योंकि मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया है रेड कलर का जो सर्कल है उसको डायरेक्टली अटैच कितने स्फीयर्स है, देयर आर 6 स्फीयर्स, सो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है 6. अब हम यहाँ पर लेयर जो है, फर्स्ट वाली लेयर है, इसको हमने लेबल किया ए, और दूसरी वाली लेयर को हमने अलग तरह से उसको क्या किया है, हमने अरेंज किया है, तो उसका हम नेम देंगे बी. देन थर्ड लेयर, उसका जो अरेंजमेंट है वो फर्स्ट लेयर की तरह है, तो उसको हम ए देंगे, और जो फोर्थ लेयर है उसका अरेंजमेंट बी के इक्वल है, तो उसको हम बी देंगे. सो इसलिए इसका अरेंजमेंट है, इसको हम बोलेंगे ए बी अरेंजमेंट. ओके. देन नेक्स्ट, अगर हम चारों एटम मतलब वो जो 6 एटम्स है, इसको हम सेंटर्स को अगर हमने ज्वाइन किया फोर क्लोजेस्ट एटम्स को, तो हमको एक हेक्सागोन मिलता है. इसके लिए इसको हम बोलेंगे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन. ओके. और यहाँ पर जो फ्री स्पेस है, वॉइड्स है, ये किस तरह की है, ट्रायंगुलर शेप है. शेप देखो किस तरह का है, जो एम्प्टी स्पेस है उसको बोलेंगे हम ट्रायंगुलर शेप. ओके. बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये वाला अरेंजमेंट. देन नेक्स्ट ये हो गए 2 डायमेंशनल. नाउ द क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन. ओके. बाय स्टैकिंग द 2 डायमेंशनल लेयर गिव्स राइज टू 3 डायमेंशनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर. तो हम कैसे स्टेप वाइज देख रहे हैं, जैसे कि फर्स्ट स्टेप में हमने देखा 1 डायमेंशन में जो स्फीयर्स है वो एक डायमेंशन में एक डायरेक्शन में अरेंज हो रहे हैं और उससे आपको रोज मिल रहे हैं. और वो जो रो है उसको हम क्या कर रहे हैं, 2 डिफरेंट पैटर्न में हम उसको अरेंज कर रहे हैं, तो आपको 2 टाइप के 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर मिले.
दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्लेन। एक प्लेन की तरह स्ट्रक्चर मिला है, प्लेनार स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। अब बस हमको क्या करना है, यहाँ पर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर मीन्स जो हमारा क्रिस्टल स्ट्रक्चर के लिए क्या करना पड़ेगा, ये वाले जो 2 डायमेंशनल जो लेयर्स है उसको हम एक के ऊपर एक के ऊपर एक अगर हम अरेंज करोगे, उसका जो पैटर्न है उसके हिसाब से आपको डिफरेंट 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। सो सबसे पहला है स्टैकिंग ऑफ स्क्वायर क्लोज पैक लेयर, मीन्स जो हमने फर्स्ट टाइप देखा है 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में, दैट इज स्क्वायर क्लोज पैकिंग। इस तरह से हमने देखा है स्क्वायर क्लोज पैकिंग की लेयर होती है। स्टैकिंग मीन्स एग्जैक्टली अबव, एक के बाद एक के बाद एक हमने एटम्स को अरेंज किया तो आपको जो स्ट्रक्चर मिलता है दैट इज क्यूबिक स्ट्रक्चर। Cubic, simple cubic structure is generated. Then spheres of all the layers are perfectly aligned horizontally and vertically. यहाँ पर हमने क्या किया है, exactly एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर मीन्स exactly हमने एक टिपिकल मैनर में हमने क्या किया है, एटम्स को और स्फीयर्स को जो हमारी प्लेन्स है उसको हमने एक के ऊपर एक अरेंज किया है। अब हम यहाँ पर सभी सिमिलर लेयर है क्योंकि हमने सेम तरह से उनको सेम फैशन में सेम मैनर में हमने उनको अरेंज किया है। तो इस टाइप की जो अरेंजमेंट है उसको हम ए अरेंजमेंट बोलेंगे। और कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें 6 होता है। कंसिडर करो यहाँ पर कोई भी एक एटम को आप कंसिडर करो तो वहाँ पर देखो वो एटम को डायरेक्टली अटैच कितने एटम्स हैं, तो 1 2 3 4 एटम्स फ्रॉम द सेम प्लेन। समझो इसको हमने कंसिडर किया, ये वाला एटम को कितने एटम्स डायरेक्टली अटैच है, 1 2 3 4 एटम्स आर डायरेक्टली अटैच एंड 1 एटम ऑफ द अबव 1 एटम ऑफ द बिलो प्लेन। इस तरह से कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर 6 है। और यहाँ पर जो यूनिट सेल मिलता है ये क्यूबिक यूनिट सेल। हमको पता है कि यहाँ पर क्यूबिक स्ट्रक्चर बनता है, मतलब उसका जो यूनिट सेल होगा वो भी क्यूबिक यूनिट सेल। इस तरह से दिखता है, एटम्स को अरेंज होके इस तरह से यहाँ पर क्यूबिक यूनिट सेल हमको देखने के लिए मिलता है। और ये वाला जो एग्जाम्पल है ये आपको पोलोनियम मेटल में देखने के लिए मिलेगा। इस तरह का अरेंजमेंट होता है वहाँ पर क्लोज पैकिंग। अब नेक्स्ट स्टैकिंग ऑफ 2 हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर, वो वाला तो बहुत ही इजी था स्क्वायर क्लोज पैक का। ये वाला भी इजी है बट थोड़ा सा आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा हेक्सागोनल क्लोज पैक। अब इसके यहाँ पर फर्स्ट वाला है द सेकेंड लेयर इज प्लेस्ड इन द डिप्रेशन ऑफ द फर्स्ट लेयर। यहाँ पर अब ये फर्स्ट लेयर है, इसके डिप्रेशन में मीन्स यहाँ पर आप देखो जो भी आपको वॉइड्स मिल रहे हैं, हाँ, वहां पर सेकेंड वाली जो लेयर है वो प्लेस होगी। ओके, इफ द लेयर इज लेबल्ड एज ए, क्योंकि हम और दूसरी वाली लेयर को हम लेबल देंगे बी, बिकॉज वो क्या है अलग तरह से अरेंज है, तो इसका अरेंजमेंट जो होगा वो होगा ए बी अरेंजमेंट। All the triangular voids of the first layer are not covered by spheres of second। यहाँ पर हमको दिख रहा है कि all the spheres जो triangular voids है ये covered है, लेकिन उस पूरी तरह सभी covered नहीं होते हैं। वो किस तरह से है वो हम देखेंगे अभी। यहाँ पर different types of voids, यहाँ पर triangular और square voids ये जो है ये 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर के वॉइड्स है। अब यहाँ पर हम 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर के वॉइड्स देखेंगे। उसमें से सबसे पहला है टेट्राहेड्रल वॉइड। ऑल द ट्राइंगुलर वॉइड दैट आर कवर्ड बाय स्फीयर्स ऑफ सेकेंड लेयर जनरेट टेट्राहेड्रल वॉइड विच इज सराउंडेड बाय 4 स्फीयर्स। ओके, किस तरह से जो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ ये फ्रंट व्यू है, ये इसका बैक व्यू है। तो ये जो स्फीयर है इसके जो टेट्राएंगुलर वॉइड है जो
वो किससे कवर होगी, सेकेंड लेयर के स्फीयर से अगर कवर होगी तो वहां पर आपको जो नेक्स्ट वॉइड मिलेगी, 3 डायमेंशनल वॉइड मिलेगी, उसको हम बोलेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड। इस तरह का स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रॉन वाला स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। मीन्स ये कॉर्नर पर एक स्फीयर, ये कॉर्नर पर एक, ये कॉर्नर पर एक और ये कॉर्नर पर एक, इस तरह से। और ये जो एम्प्टी स्पेस होगी ये होगी टेट्राहेड्रल वॉइड। देन नेक्स्ट नेक्स्ट टाइप ऑफ वॉइड है जो 3 डायमेंशन में, वो है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। द रिमेनिंग ट्रायंगुलर वॉइड ऑफ फर्स्ट लेयर हैव above them the triangular void of second layer। मीन्स जो फर्स्ट वाले कुछ ट्रायंगुलर वॉइड्स है और वो जो है जो स्फीयर से कवर्ड है उसको छोड़ के जो ट्रायंगुलर वॉइड है वो किस तरह से होगी, the remaining triangular void of first layer have above them the triangular void of second layer। मीन्स जो बची हुई रिमेनिंग वॉइड है फर्स्ट लेयर की वो किस तरह से होगी, उस पर एग्जैक्टली उसके ऊपर आएगी द triangular void of second layer। This overlapping of triangular voids from the two layers together form an octahedral void। Just like this, means फर्स्ट वाली लेयर है उसके ट्रायंगुलर वॉइड पर एग्जैक्टली सेकेंड वाली लेयर की ट्रायंगुलर वॉइड ओवरलैप होगी और उसके बाद जो ये एम्प्टी स्पेस बनेगी वो होगी ऑक्टाहेड्रल एम्प्टी स्पेस। जस्ट लाइक दिस, इसके हर एक कॉर्नर पर एक 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 एटम अरेंज होगा। देन नेक्स्ट, अब यहाँ पर हमने सेकेंड लेयर जो है वो देखे, फर्स्ट और सेकेंड लेयर किस तरह से अरेंज करने के बाद अब इस पर थर्ड लेयर जो है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की हम अरेंज करेंगे तो किस तरह से स्ट्रक्चर मिलेगा। तो इसके दो टाइप्स है। फर्स्ट वे है to align the spheres of third layer with the spheres of first layer, resulting the pattern will be AB like this। अब ये वाली फर्स्ट लेयर है, इसके ऊपर सेकेंड लेयर, हमने इसके पहले वाले इसमें देखा इस तरह का अरेंजमेंट है। अभी थर्ड जो स्फीयर हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर है इसको हम इस तरह से अरेंज करेंगे कि एग्जैक्टली अबव द फर्स्ट लेयर। ओके, जो ग्रीन कलर की फर्स्ट लेयर है उसके एग्जैक्टली अबव में हमने थर्ड लेयर को प्लेस किया। तो इसलिए यहाँ पर थर्ड लेयर जो है ब्लू कलर की लेयर है, इसने पूरी तरह से जो ग्रीन कलर की लेयर है उसको कवर अप कर लिया। तो आपको एग्जैक्टली समझ रहा होगा कि जो स्फीयर्स ऑफ थर्ड लेयर है वो एग्जैक्टली किस तरह से अरेंज है स्फीयर्स ऑफ फर्स्ट लेयर। ओके, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो फर्स्ट लेयर है अगर हमने उसको नेम दिया ए, सेकेंड लेयर को हमने नेम दिया बी क्योंकि डिफरेंटली अरेंज है, बट थर्ड लेयर जो हम अरेंज कर रहे हैं वो एग्जैक्टली इक्वल टू द फर्स्ट लेयर है, इसके लिए हम थर्ड लेयर को भी नेम क्या देंगे, ए देंगे। सो जो अरेंजमेंट जो पैटर्न बनेगा वो होगा ए बी पैटर्न लाइक दिस। अब हमने इसको अगर हमने टॉप व्यू से देखा तो इस तरह से आपको स्ट्रक्चर मिलेगा ए और जो टॉप फर्स्ट और थर्ड लेयर है वो किस तरह से है, एग्जैक्टली एक के ऊपर एक अरेंज है, मतलब सेम फैशन में सेम मैनर में अरेंज है। दिस अरेंजमेंट रिजल्ट्स इन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इस तरह के अरेंजमेंट को हम बोलेंगे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, दैट इज HCP, और इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 12। अब यहाँ पर आप इस डायग्राम में कंसिडर करो, यहाँ पर तो पॉसिबल नहीं है, यहाँ पर हम कंसिडर करो इस सेंट्रल एटम को, इसके अतराफ में कितने एटम्स है, तो 6 एटम फ्रॉम द सेम प्लेन, ओके, and 3 atom from top
3 atom from the bottom. इस तरह से 12 atoms are directly attached. So its coordination number is 12. Example, metals such as magnesium and zinc. मैग्नीशियम और जिंक मेटल में इस तरह का अरेंजमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा. द नेक्स्ट सेकेंड वे जो है, टू कवर द octahedral void of third layer. In such placing, the spheres of third layer do not align with the spheres of the first layer. देखो किस तरह से ये वाली जो फर्स्ट लेयर है, फिर सेकेंड लेयर हमने पहले ही अरेंज किया है. थर्ड लेयर को इस तरह से अरेंज करना कि वो फर्स्ट लेयर से डिफरेंटली हो. ओके, द थर्ड लेयर विच डू नॉट अलाइन विद द फर्स्ट लेयर. हम लास्ट जो स्लाइड थी, लास्ट स्लाइड में हमने देखा कि किस तरह से जो ब्लू कलर की जो लेयर है वो एग्जैक्टली ओवरलैप कर रही थी, एग्जैक्टली इन अलाइनमेंट विथ ग्रीन लेयर. ग्रीन लेयर को पूरी तरह से उसने कवर अप कर लिया था. बट यहाँ पर किस तरह से उसका अरेंज है डिफरेंटली, उसको हमने अरेंज किया है, वो एग्जैक्टली उस पर अलाइन नहीं करेगा. इसके लिए हम क्या करेंगे, जो थर्ड लेयर है उसको नेम हम देंगे सी, और इस तरह से जो पैटर्न मिलेगा हमको वो होगा ABC टाइप पैटर्न. मीन्स पहले ए लेयर ग्रीन कलर की, फिर ब्लू कलर, फिर जो है बी लेयर जो हमने यहाँ पर येलो कलर से दिखाया है, देन थर्ड लेयर ब्लू कलर की जिसको हमने सी से बताया है, और फिर उसके बाद अरेंजमेंट होगा फिर ABC. इस तरह का जो पैटर्न होता है उसको ABC पैटर्न बोलते हैं. यहाँ पर आप देख सकते हो इसका अरेंजमेंट किस तरह से. तो ए का अरेंजमेंट इस तरह से है, बी सी उसका अपोजिट है, मीन्स एग्जैक्ट सेम नहीं है, अपोजिट है अरेंजमेंट. ओके, दिस अरेंजमेंट रिजल्ट्स इन क्यूबिक क्लोज पैकिंग. इस तरह का जो अरेंजमेंट है इसको हम बोलेंगे क्यूबिक क्लोज पैकिंग और CCP स्ट्रक्चर, और इसी को ही हम FCC भी बोलते हैं, फेस सेंटर्ड क्यूबिक. ये भी सेम ही है, दोनों का मतलब वही है. और इसमें भी कोऑर्डिनेशन नंबर सेम जैसे फर्स्ट वे में था. हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में 12 कोऑर्डिनेशन नंबर है. सेंटर के एटम को कंसिडर करो, इसको डायरेक्टली अटैच एटम इन प्लेन में 6 है, अबव द प्लेन, अबव के प्लेन में 3, बिलो प्लेन में 3. इस तरह से 12 कोऑर्डिनेशन नंबर है. और इस तरह का जो अरेंजमेंट है, इस तरह का जो भी पैटर्न है, ये आपको मिलेगा मेटल सच एज कॉपर एंड सिल्वर. Then next, the number of voids per atom in HCP and CCP. Okay, तो यहाँ पर void जो है टेट्राहेड्रल void है, ये जो आपको देखने के लिए मिलेगी, that is 2 tetrahedral void associated with each atom. HCP और CCP में सेम है, हर एक एटम को कितने टेट्राहेड्रल वॉइड्स हो गए, 2 टेट्राहेड्रल वॉइड हो गए एक एटम के लिए. तो इस तरह से नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज इक्वल टू हाफ ऑफ द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, मीन्स 1 octahedral void associated with each atom. ये वाले पॉइंट नोट डाउन कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, दैट इज क्लोज पैकिंग इन 3-dimensional स्ट्रक्चर. स्टेप वाइज देखा हमने. स्टेप 1 में हमने देखा कि पैकिंग इन 1-dimensional, देन पैकिंग इन 2-dimension. 2-dimension में भी अगेन 2 टाइप थे, कौन सा, सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग और दूसरा है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग. फिर उसके बाद में हमने क्लोज पैकिंग इन 3-dimension देखा. उसमें हमने सबसे पहला स्टैकिंग ऑफ रोज ऑफ हेक्सागोनल स्क्वायर क्लोज पैक देखा, और उससे आपको सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर मिला. देन हम नेक्स्ट स्टेप था स्टैकिंग ऑफ 2 हेक्सागोनल प्लेन्स. उसके बाद में हमने थर्ड लेयर को
अरेंज करने के दो अलग अलग टाइप देखे, उससे आपको HCP और CCP दो तरह के स्ट्रक्चर्स मिले. दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. थैंक यू. The next part we will see in the next video. Thank you.